A very good morning, everyone. I'm Himani. Today's on behalf of entire team welcomes you all in our today's guest lecture on needs of leadership skills and competences in Indian market. A very warm welcome to our guest speaker, Mr. Joydip Acharya. Now, I Hi everyone, good morning. sir to enlighten everyone about the concerned topic. Thank you. So Himani, shall we start? Yes, sir. Okay, so good morning friends. Thank you so much Himani. It's an honor to be here with Shekhar's team here. Hope all of you are safe and in good health during this tough COVID times. So stay safe and take care of yourselves. So friends, the topic that Himani just spoke about is leadership and competencies, right? So I'm not going to show you any PPT. I'm just going to talk to you about certain things that I think is very important for all of us, especially in times to come, right? Let me give you a little bit of a backdrop about my experience so that you will be able to connect with it better. So I come now with almost 30 years of experience, 28 years of experience after my engineering, right, and MBA. So having worked in multiple industries like IT, oil and gas, consulting, consumer electronics and durable, and BFSI. My last position was with the Tata Group. I was a vice president, strategic accounts for them, based out of the head office in Bombay. I left them in 2011 and 2013. And from 2013 onwards, I have been consulting. Just a second. Monica, I'm on a call, Zoom call. I'll call you later. Sorry. So since 2013, I am consulting organizations across India, Sri Lanka, Dubai, Singapore, and the Philippines, helping organizations improve their people as well as their process productivity. So when we talk about process productivity, we are talking about using concepts like design thinking, helping organizations to create processes that talk to each other, keeping the customer in mind, right? So that they don't work in silos, but they work with the end objective of ensuring they deliver to the customer the promise and the commitment that they are in. We talk about using Six Sigma, lean management, so that we are able to reduce inefficiencies, build efficiencies, and therefore improve profitability, right? That's what we do in process. In the people side, we help organizations in their mission and the vision, right? We help organizations craft and identify their vision statements and then look at competencies that are required to reach there. You know, a very simple thing. The competencies that may have been important 10 years ago are no longer in the run today, right? So if I do not stay relevant as an organization and as an individual, I'm going to be a laggard. Okay. So as an organization, I'm going to miss out very, very soon because competition is not going to be sitting idle. Okay. So we help organizations identify the competencies which will take them to their vision. We then identify, we do a competency analysis and mapping to see what is the existing level of competencies of these leadership team and where is the gap, so that we are able to create IDPs, individual developmental plans, right? We help organizations with performance management systems, with job descriptions, culture creation, so on and so forth. That is what we do with the people side. Some of the companies that we have worked for are the Tata Group. We have worked for the Aditya Birla Group, Century Pulp and Paper. We have worked for Mother Dairy. We have worked for Amul. We have worked for LG Electronics.
We have worked for your Jackson Engineering. We have worked for one of the largest railway track laying and maintenance company in the world, Placer, which is an Austrian firm. We have worked for the BFSI. We have worked for Government of India, so on and so forth. Right. So that is all about what me and my team does. Now let's get back to basics. We're talking about leadership. Yeah. So what exactly is leadership? Why are we talking about it? So when I ask a question, I expect somebody to unmute the mic as well as the camera, show me the face and answer. Because I'm not a professor, I'm not a teacher, and I hate it to speak to a screen. Yeah. Hello. So I asked a question, I expect an answer. So what exactly is leadership? What is leadership? What do you understand by it? Hello, sir. Am I audible? Yeah, you're very audible. Yeah, my name is Ishwar Rawal, sir. According to me, leadership is like like if we have an experience how to run the business, so we can lead and we can help the startups or small kind of business to take the right decisions because we go through them. So according to me, leadership मेरे हिसाब से ये है कि हमें जब भी हम कोई करियर भी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस अपना गेन करें, नॉलेज हमेशा लेते रहें और हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार रहें. Okay, great, Ishwar. Thank you so much. So that's well said. Anybody else who wants to add on to it? Anybody else? So don't tell me Ishwar is the only guy who has a voice in this group of so many people. Anji, so many people here. Sanjana, Sachin, Utkarsh, Vyan, Shruchi, Kundan, Ravi, Priyanka, Saksham. Are you guys on the camera? Are you guys listening? Soryo, Gadryo. हेलो सर. हाँ जी. मेरा एक और पॉइंट है सर, जैसे कि अक्सर क्या होता है, जैसे आप जैसे बड़े बड़े कंपनीज में आपने बहुत सारी कंपनीज में वर्क करा, लाइक टाटा, आदित्य बिरला. आई एम ऑल्सो है ना, आई वांट टू बी एन एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस. मेरे पास 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस भी है स्टॉक में, मार्केट में काम करने का, ऑल्दो चल रहा है. बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे इतने बड़े बड़े ग्रुप्स में जब आप जैसे लोग काम करते हो, लेकिन हमारे पास उस क्वालिटी की लीडरशिप का कनेक्शन नहीं हो पाता. हम जैसे अगर आपसे डायरेक्ट सीखना चाहिए. I'll come to your question later. So you have asked me a question, I'll come to it later. So let us first get clear on the track. So Himani, is the team alive, awake or sleeping? I don't know. Am I talking to screen only and Ishwar is the only participant and rest are all ghost participants? No, sir, they all are alive. Is it? Yes. So I also want to add one point when I'm talking about leadership. So leadership is something like or inspire individual, means अपनी टीम को इस तरीके से लेकर के चलना जहां पर आप रिजल्ट्स को बाद में सोचें, बट आपकी टीम को आप किस तरीके से इंस्पायर कर पा रहे हैं, उनके एफर्ट्स को किस लेकर के आ पा रहे हैं, कि उनकी नॉलेज जो और जो स्किल्स उनके पास है, हाउ दे आर, हाउ टीम एबल टू परफॉर्म and work on their knowledge and their skills and experience as well. Okay, so let's get back to the track. So since I think the team members are not very communicative and very interested in a two-way communication, so it seems like they are more interested in a one-way dialogue. So leadership is all about, like Himani, you also said something, and what Ishwar said. At the end of the day, what really matters in any organization is the bottom line. Hello. Right. So if you are talking about, if you're talking about leadership. Hello, sir. Hello. Hello. Sir, I am asking. Hello. Can you? I am asking your. I am Ravi Kumar. I am. Your question, sir, ki. आप हिंदी में बोले कोई दिक्कत नहीं इन फ्यूचर. कुंदन आप हिंदी में बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मतलब हम जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं कोर्स, तो करियर में मतलब कुछ इसकी आने वाले समय में इसमें
हमारा करियर बन सकता है। कि आज के टाइम में लोग सरकारी चीजों में जाते हैं तो सोचते हैं कि यार एक सरकारी चीज में इतने पेपर, एक ही बार मेहनत होगी जो होगी, 1 साल की मेहनत करते हैं, वो कोचिंग करते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते हैं और तैयारी करते हैं। इस हिसाब से अगर हम प्राइवेट, अगर जैसे कि प्राइवेट लाइन है क्राफ्ट लाइन, तो आगे जाके इस चीज में मतलब करियर है। बेटे मैंने जो सवाल पूछा, आप मुझे सवाल का जवाब दे रहे हो या आप मुझे अलग सवाल पूछ रहे हो? सवाल पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे। तो मुझे सवाल नहीं चाहिए अभी, ठीक है? मैंने आपसे एक जवाब पूछा है, सवाल मैंने पूछा है, उसका जवाब दीजिए। आपके सवालों का जवाब मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है? सो दोस्तों, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट अ ग्राफिक डिजाइनर का करियर क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप एंड कॉम्पिटेंसीज, ठीक है? बाकी हम ग्राफिक डिजाइनर बने, हम फाइनेंशियल एनालिस्ट बने, हम बिजनेस मैनेजर बने, हम प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बने, हम आईटी स्पेशलिस्ट बने, जो भी बने, राइट? वो उस जो भी इमारत आप बनाएंगे, राइट, वो एक मजबूत नींव की उसकी जरूरत है, फाउंडेशन दोस्तों। और फाउंडेशन सिर्फ नॉलेज, ज्ञान से नहीं होता, राइट? तो जैसे ईश्वर ने कहा है, वहां पे बहुत एक जरूरी चीज है कि एक्सपीरियंस, राइट? और उस एक्सपीरियंस जब आप जहां पे लेते हो, वहां पे आप कितना सीखते हो उस चीज को, राइट? तो जैसे मैंने कई जगह लोगों को देखा हुआ है, एमबीए करने के बाद वो लोग नौकरियां करने आते हैं और उनको लगता है शायद वो पहले डे से वो लोग सीईओ बन गए, बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे, सेल्स कॉल करना पसंद नहीं करेंगे, कस्टमर से मिलना पसंद नहीं करेंगे, राइट? बस वो सपने देखना भूल जाओ। अगर किसी भी कंपनी में अगर सक्सेसफुल होना है तो दोस्त, पहले ये जान लो, ये समझ लो, ये अपने जहन में डाल लो कि आपको सबको, हम सबको काम करना पड़ता है। अगर काम नहीं करेंगे, अगर सीखेंगे नहीं और उस सीख का हम अगर रिजल्ट नहीं देंगे, कोई आपको बिठाए के खाना नहीं खिलाएगा। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच, राइट? वेदर यू बिकम ए ग्राफिक डिजाइनर, हर एक चीज की जरूरत है। इस दुनिया में इतना काम है, इतना काम है, इंडिया में भी इतना काम है, राइट? ये आप सोच नहीं सकते हो। पर बंदे नहीं है जो काम करना चाहते हैं, समझ रहे हो आप? सुकुंदन, बंदे चाहिए काम करने वाले, सपने देखने वाले नहीं। सिर्फ सपने देखो, पर उस सपनों को साकार करने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। सो लीडरशिप इज अबाउट डिलीवरिंग रिजल्ट, राइट? एंड यू कैन ओनली डिलीवर रिजल्ट व्हेन यू हैव नॉलेज, व्हेन यू हैव स्किल्स एंड व्हेन यू हैव द इंटेंट, या जिसे हम कहते हैं ना एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव है तो आप शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज से आप लोगों ने डिग्री लिया होगा, पर उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है, उसको आप फाड़ के कूड़े के डब्बे में डाल दो। क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, अगर आपका एटीट्यूड ही कहता है कि यार बॉस मैं काम नहीं करूंगा, राइट, कुछ नहीं कर सकते हो। अंग्रेजी में एक कहावत है दोस्त कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर। आप घोड़े को खींच के आप पानी तक ले जा सकते हो, उसको पानी नहीं पिला पाओगे आप। तो अपने दिमाग में पहले ये डालो, बॉस मुझे अगर कुछ बनना है जिंदगी में, मुझे काम करना होगा। मुझे वहां पे कोई भी कंपनी में जाके वाइस प्रेसिडेंट पहले दिन से नहीं बनता है, कोई सीईओ बन के फिर नीचे एग्जीक्यूटिव नहीं बनता। शुरू करता है एग्जीक्यूटिव से, फिर जाके सीईओ बनता है, राइट? घिसना पड़ता है। ओके, जो सीखते हो उसका एप्लीकेशन होना चाहिए और उस एप्लीकेशन का रिजल्ट चाहिए हिमानी। सो लीडरशिप इज नॉट ओनली अबाउट इंस्पिरेशन। हमें कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहिए सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए, याद रखिए। तो एवरी कंपनी दे वांट समबडी हु कैन लीड टू गिव द राइट रिजल्ट। ओके, इफ यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर बट द कंपनी इज अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, राइट? Because at the end of the day, the company is paying a salary. The salary will only come when the company is profitable. Profits will only come when the products sell and the customers are happy. That can only happen when employees are delivering the right result. Right? So दोस्तों, we are getting back to leadership. दोस्त, आज की तारीख में भले हम ग्राफिक डिजाइनर बने या फाइनेंशियल एनालिस्ट बने या कंसल्टेंट बने आईटी प्रोजेक्ट्स में, याद रखें, मुझे आज, जब मैं कह रहा हूं मुझे, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मुझे आज की तारीख में ये जानना बहुत जरूरी है, जो कुंदन, जो आप भी सवाल पूछ रहे थे, कि आज की तारीख में मैक्रो इंडस्ट्री में दुनिया में क्या हो रहा है। मैक्रो एनवायरनमेंट जो है, वहां पे क्या चल रहा है,
व्हाट इज इट दैट इज रिक्वायर्ड, वहां पे चैलेंजेस क्या है, समस्या क्या है, वहां पे अच्छा क्या हो रहा है। जब तक मेरी सोच नहीं मैं बढ़ाऊंगा और जब तक मुझे उस लेवल की बातें समझ में नहीं आएंगी, तब तक मैं माइक्रो एनवायरनमेंट जो हमारे देश में हो रहा है या हमारे शहर में हो रहा है, मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वही तो गैप है ना, वही तो ब्रिज है, राइट। और वही चीज कुंदन आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएगी। अपॉर्चुनिटी है दोस्त, राइट। पर उसको समझने की, उसको बूझने की, उसको फिर अपने तरीके से उसको अपने स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन करने के लिए आपको एक जज्बा होना चाहिए और आप में एक जुनून होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप फिर बैठे बैठे सपने लो, दिन में 100 कप चाय पियो, सिगरेट पियो, जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, राइट। सो दोस्त, लीडरशिप में तभी हम कहते हैं कि जब कोई भी कंपनी किसी भी इंसान को हायर करती है, दे स्टार्ट लुकिंग एट सर्टेन क्वालिटीज, राइट। सो क्वालिटीज आर कॉम्पिटेंसीज, जैसे अभी ईश्वर ने या हिमानी ने कहा कि नॉलेज और स्किल्स, है ना। सो नॉलेज और स्किल्स की जरूरत है, ओके, बहुत जरूरत है। पर दोस्त मुझे उस समय एक चीज की सख्त और जरूरत है, जो है बिहेवियर, राइट। नॉलेज ज्ञान है, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है अगर मैं उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर सकता हूं। समझ रहे आप? तो आप मुझे ये बताइए कोई भी कि नॉलेज और स्किल में फर्क क्या है। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल? हु कैन शेयर दैट? सर Ishwar, just a सर second. Let us see if somebody else is awake. Let me see if ओके somebody else is awake. Yeah, anybody else? Is there a difference between knowledge and skill? सर नॉलेज वो होता जो कोई इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको, स्किल जो तो प्रैक्टिकली जो नॉलेज रहता है उसको जो ना स्किल बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया कुंदन, वेरी गुड। सो जैसे कुंदन आपने खुद कहा, ये नॉलेज इज ज्ञान, है ना। किताब मैंने पढ़ लिया, किताब से पढ़ के उसको जो मुझे मिला वो नॉलेज है, ज्ञान है। इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है इफ आई एम नॉट एबल टू अप्लाई इट। सो नॉलेज अप्लाइड इज स्किल, है ना। सो जैसे कि अगर मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, आई कैन नॉट लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार बाय रीडिंग द मैनुअल, है ना। आई हैव टू डू इट प्रैक्टिकली, जैसे कुंदन ने कहा है। गिटार बजाना है, सीखना है, आई कैन नॉट डू इट बाय रीडिंग अ बुक, आई हैव टू practice it, I have to do it. So doing a skill, so applying what I know is skill. समझ रहे हो? Okay, so now knowledge and skill are required, but they are required more to be shown as a behavior, friends, and that behavior is important. दोस्तों हमने ये देखा है कि पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में दुनिया कहां से कहां बदल गई है। मानते हो आप लोग? मानते हो ना? 15 साल पहले किसी ने सुना था कि समथिंग कॉल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एयरबीएनबी के नाम किसी ने सुना था 15 साल पहले कि यार उनके पास एक भी अपना होटल रूम नहीं है, बट दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होटल प्रोवाइडर्स, रूम प्रोवाइडर्स, दे आर एग्रीगेटर्स। किसी ने सुना था उबर, ओला, राइट। उनका अपना एक भी गाड़ी नहीं है, बट दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीगेटर्स, राइट। सो दुनिया हैज, वो बदल गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वर्ल्ड। आज के तारीख में दोस्त कोई कैमरा कोई खरीदता है, पीपल बाय फोन्स, इजंट इट? क्योंकि फोन में कैमरा है। तो आजकल कैमरा वही खरीदेगा जिसे फोटोग्राफी की का शौक है, राइट। अदरवाइज दे यूज फोन्स, फोन्स हैव वेरी गुड कैमरास नाउडेज, राइट। सो टेक्नोलॉजी इज शिफ्टिंग. So we are right now in a VUCA world. VUCA माने volatile, uncertain, complex and ambiguous, right? दुनिया सालों में इधर से उधर हो रही है। किसी ने सुना था कि 2 साल पहले वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट? नहीं ना। आजकल लोग सोच रहे कि ऑफिस जाने की जरूरत ही क्या है, खामों का क्यों आप किराया दो ऑफिस के लिए, वर्क फ्रॉम होम करो ना। तो कंपनीज नाउडेज they are leaving office space and ensuring that their sales team, their branch operation team, they all work from home. Only manufacturing should be there in manufacturing. So the concept is changing, VUCA, right? तो अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि दोस्त कि मेरे इर्द गिर्द सब कुछ बदल रहा है
और मैं अगर नहीं बदलना चाहता हूं तो फिर प्रॉब्लम है ना? सो इट मीन्स दैट आई हैव टू बी एबल टू स्मेल बदलाव, कि यार अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में और कहां कहां बदलाव हो सकता है। क्या मैं उसके लिए आज से फ्यूचर रेडी हूं? समझ रहे? द क्वेश्चन इज नाउ अबाउट बीइंग फ्यूचर रेडी, राइट? सो एम आई अहेड ऑफ व्हाट अदर्स आर, देन आई विल बी सक्सेसफुल विद देम, राइट? सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर बनना है ना, बड़ा सोचो, उसकी नीड देखो, राइट? देखो वहां पे आप वैल्यू क्या डाल सकते हो कस्टमर के लिए, कस्टमर क्या चाहता है। आज सब कुछ डिपेंड्स ऑन व्हाट द कस्टमर वांट्स, राइट? सो यू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर्स लाइफ एंड द कस्टमर विल ऐड वैल्यू टू योर पॉकेट्स, सिंपल है। ओके, सो दोस्त, कॉम्पिटेंसीज की जब हम बात करते हैं लीडरशिप के लिए, देयर आर सर्टेन कॉम्पिटेंसीज जो बहुत जरूरी है हम सब लोग को जाना। फॉर एग्जाम्पल, एज अ लीडर आज की तारीख में, एज ऑल ऑफ अस, सी दोस्त, जैक वेल्च का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। ही वाज द चेयरमैन ऑफ जीई, जनरल इलेक्ट्रिक, राइट? तो उन्होंने एक बार कहा था, बिफोर आई बिकम अ लीडर, लीडरशिप इज ऑल अबाउट ग्रोइंग माई सेल्फ। लीडर बनने से पहले लीडरशिप इज ऑल अबाउट growing myself. After I become a leader, leadership is all about growing others, right? Because once I become a leader, it is about creating more leaders who are successful so that the company will grow. But before I become a leader, I must prepare myself to become a leader, to start thinking like a leader, Ishwar, like you were saying, right? तो दोस्त, ये बहुत जरूरी है मुझे उस समय मेरे लिए कि मैं कुछ खास कॉम्पिटेंसीज पर काम करूं। नॉलेज एक चीज है, एप्लीकेशन दूसरा चीज है, जो बिहेवियर के रूप से दिखता है ना? अ लीडर मे बी गुड, बैड, अगली, ईश्वर, जैसे आप कह रहे थे, मुझे वो क्वालिटी के लीडर दिखते नहीं है, क्योंकि शायद होंगे नहीं, राइट? वो किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले वाले हिसाब किताब है कुछ लोगों का। पर जो अच्छे लीडर है, राइट, दे आर एबल टू क्रिएट दैट डिफरेंस, दे आर एबल टू बिल्ड टीम्स, दे आर एबल टू build organizations, they're able to create change, right? So they don't wait for change, they are the change. समझ रहे आप? So for example, leadership competencies में, competency माने knowledge, skill and attitudes. तो अगर मैं लीडर हूं, I need to have a competency of strategic acumen, मतलब मेरे में, मुझ में सोचने की ये क्षमता होनी चाहिए कि यार आज दुनिया में धंधा मेरे एरिया में कहां से कहां जा रहा है, आज मेरे देश में, मेरे एरिया में धंधा कहां से कहां जा रहा है, स्कोप क्या है, गैप क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। अगर मुझे उस चीज की समझ नहीं है, मैं अगर सिर्फ एक कुएं का मेंढक बन के रह जाता हूं, तो फिर दिक्कत है। फिर मेरी सोच बड़ी नहीं है, मेरी सोच बहुत छोटी है, राइट? तो वो सोच होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन। दूसरा है कमर्शियल सेंस, राइट? डू आई नो कि हर एक काम के लिए पैसा लगता है? देयर इज नथिंग, देयर इज नो सर्विस दैट इज फ्री फॉर एनी कंपनी। अगर हम कस्टमर को एक फ्री कूपन देते हैं, उस कूपन का भी खर्चा है, राइट? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उनके बुक ऑफ अकाउंट्स में वो खर्चा है, राइट? क्या मुझ में ये समझने की क्षमता है? क्या मैं समझ सकता हूं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी विल कम फ्रॉम देयर। तीसरा है कॉम्पिटेंसी इज फॉर डेवलपिंग पीपल। क्या मैं ये समझ सकता हूं कि मेरे टीम में किस बंदे का क्या करियर गोल है, और उसका आज की तारीख में उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसमें वीकनेसेस क्या है, और मैं उसको कैसे बढ़ा सकता हूं। इनमें से, इन 100 जनों में से कौन से 15 जने मेरे फ्यूचर लीडर्स बन सकते हैं, और इनको मैं कैसे ग्रूम कर सकता हूं, और क्या मैं उनको डेवलप कर रहा हूं, या मैं खुद को उस लेवल के लिए डेवलप कर रहा हूं, ताकि अगर 100 जने और मैं उन 100 में से एक जना हूं, मैं सबसे पहले दिखूं, राइट? कम्युनिकेशन, लीडर कॉम्पिटेंसी ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मैं, कम्युनिकेशन डज नॉट मीन अंग्रेजी या हिंदी, कम्युनिकेशन का मतलब है कि क्या मैं अगले को वो चीज
सिंपल आसान तरीके से समझा सकता हूं, और क्या उसको वही चीज समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाहता हूं? अगर वो समझ में नहीं आती तो कम्युनिकेशन गैप है, राइट? कहा जाता है दुनिया में किसी भी कंपनी में मोस्ट ऑफ द कंपनीज फेल बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। ठीक है, सर उसने कहा था, सर मैंने सोचा उन्होंने ऐसा कहा था, सर मुझे लगा, तो इन चीजों में दुनिया और कंपनियां बह जाती है। उस लगने में और सोचने में और समझने में करोड़ों का नुकसान और इधर उधर हो जाता है। सोचो, राइट? सो लीडरशिप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्पिटेंसी एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या अगर ये एक प्रॉब्लम है, क्या मैं उस चीज का रूट कॉज एनालिसिस निकाल सकता हूं और उसका तोड़ निकाल सकता हूं? अगर मुझे बार बार कोई भी प्रॉब्लम को लेकर अपने बॉस के पास जाना है, सर ये हो गया, अब बताओ क्या करूं, सो देन आई एम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है और मेरे हिसाब से सर ये करना चाहिए, तो वो आगे सोच रहा है ऑलरेडी, उससे ऑलरेडी वो सोल्यूशन सोच रहा है। तो सक्सेसफुल बंदा वही होगा जो आगे कोई भी प्रॉब्लम का उसके पास एक सोल्यूशन है। समझ रहे हो आप? हाँ, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। फिर तीसरा है एनालिटिकल स्किल्स। क्या मैं ये एनालाइज कर सकता हूं कि दोनों का प्रॉस एंड कॉन क्या है, प्लसेस क्या है, माइनसेस क्या है, क्योंकि उस प्रॉस एंड कॉन से, उस एनालिसिस से डिसीजन मेकिंग होगा। अगर मैं डिसीजन ही नहीं ले पाऊंगा तो मैं घंटा लीडर हूं, है ना? तो मैं कैसा लीडर हूं मैं, अगर मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगा? तो इसीलिए माई एबिलिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड देन कम आउट विद पॉसिबल डिसीजंस, राइट, इज रिक्वायर्ड। फिर तीसरा है, एक और है कॉम्पिटेंसी, इज एग्जीक्यूशन, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। बस आज के तारीख में हमें एग्जीक्यूशन चाहिए, स्पीड चाहिए, थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए। अगर मैं महीने लगा दूं सिर्फ सोचने में, तब तक तो कंपटीशन कहां से कहां निकल जाएगी यार। तो यू नीड स्पीड, राइट, स्पीड ऑफ एक्शन। अगर हम हफ्ता, महीना, साल लगा देंगे सोचने में तो कहानी खत्म। दोस्तों आप लोगों को मालूम है क्या, कोडैक वाज द फर्स्ट कंपनी विच स्टार्टेड डिजिटल कैमरा। ठीक है, आज कोडैक कहां है? खत्म। पता है क्यों? क्योंकि कोडैक ने डिजिटल कैमरा तो बना लिया, पर उसका गो टू मार्केट का जो प्लान था उन्होंने लगाया 1 साल। उस 1 साल में 2 महीने के अंदर सोनी अपना कैमरा लेकर आ गई, डिजिटल कैमरा। कोडैक खत्म, राइट? सो इट इज स्पीड अबाउट रीचिंग आउट टू द मार्केट। समझ रहे आप? यस सर। वो स्पीड का भी बहुत जरूरत होता है। ओके, तो ऐसे कई सारे कॉम्पिटेंसीज है दोस्त, जो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर वो, और अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, हो सकता है मैं स्टूडेंट हूं आप जैसा, पर वो मुझे हायर तभी करेगा जब मैं उनको दिखा पाऊंगा ये प्रूफ कि मुझ में ये क्षमता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता हूं। तो बोलेंगे अच्छा मुझे आप एग्जाम्पल दीजिए कि किस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा क्यों है। तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था अपने ट्रेनिंग टाइम में। कोई बात नहीं, ट्रेनिंग टाइम में था ना, प्रोजेक्ट था। सर उस प्रोजेक्ट के दौरान ये एक समस्या आई और इस समस्या का मैंने ये तोड़ निकाला और इससे ये फायदा हुआ। तब जाके बंदे को लगेगा कि नहीं यार ये बंदा लॉजिक है इसमें। सर मेरे पास सर 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैं पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था। सर उस पार्ट टाइम नौकरी में सर मैंने अपना लीडरशिप स्किल्स दिखाया और मैंने बाकी लोगों को प्रोडक्ट के बारे में सिखाया है, मैंने उनको डेवलप किया। कैसे? सर मेरे टीम में, वहां पे मैं जिस टीम में काम कर रहा था सर उसमें 17 लोग थे और उनमें से 11 लोग ऐसे थे जो नए थे, जिनको प्रोडक्ट की समझ नहीं थी। तो सर मैं शाम को ऑफिस के बाद उनके साथ बैठ के उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाता। सर ये मेरा रोल नहीं था, पर मुझे लगा कि अगर मैं उनको समझाऊंगा तो उनको भी सक्सेस मिलेगा। तो अगले को लगेगा कि यार ये बंदा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, ये बंदा टीम और कंपनी के बारे में सोचता है, इसको लो। समझ रहे हो आप? ये है बिहेवियर, राइट? सर मैं ये समझता हूँ सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। क्यों? सर मैं जिस कंपनी में और जिस जगह में काम करता हूँ सर वहां पे मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ
और सर मुझे कस्टमर के साथ, मुझे टीम मेंबर्स के साथ, मुझे बाकी डिपार्टमेंट के साथ और मुझे गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट बॉडी के साथ काम करना पड़ता है। और सर मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स है वो अहेड ऑफ शेड्यूल कंप्लीट होते हैं, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट और टाइमली कम्युनिकेशन के साथ मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ। समझ रहे हैं आप? तो आप डेटा देते हो, आप फैक्ट्स देते हो, आप एग्जाम्पल देते हो, ये आप ये नहीं बोल रहे हो कि सर मैं ऑनेस्ट हूं, सर मैं हार्ड वर्किंग हूं, ये कोई सब कोई बोलता है। तो बट इफ आई एम एबल टू शो द राइट बिहेवियर कि मैंने कहा क्या किया था और इससे पता लगता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूं, तब अगले को लगेगा कि नहीं यार इस बंदे में वो कॉम्पिटेंसीज है, ये आज नहीं तो 5 साल बाद इसको हम ग्रूम कर सकते हैं। समझ रहे आप? सो दोस्त, हर एक चीज को, हर एक इंसान को अपने आप पर काम करना बहुत जरूरी है। यू आर डूइंग अ गुड कोर्स, डू दैट, बट व्हाइल यू आर स्टडिंग द कोर्स प्रिपेयर योरसेल्फ, रीड बुक्स। मुझे आजकल सबसे ज्यादा जो मैं देखता हूँ जिससे मुझे दर्द महसूस होता है इज दैट मैं देखता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ये लोग, आप लोग किताब पढ़ते हो, यू डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। मैंने अभी आपके सामने नाम लिया जैक वेल्च का। आई एम श्योर 90% ऑफ यू वुड नॉट हैव नोन हु इज जैक वेल्च। इससे एक और चीज दर्शाता है लोगों को कि ये लोग ये जो बच्चे हैं ये अपने कुएं में मेंढक है, इनको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। तो बच्चों, ये जो है ना, इसके पीछे ज्यादा मत भागो, ठीक है? जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करो, किताबें पढ़ना शुरू करो। इसमें पढ़ो किंडल के रूप में, या किताबें खरीदो और पढ़ो, या किताबें बोरो करो और पढ़ो, बट लर्न अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर बिजनेस, लर्न अबाउट व्हाट अदर लीडर्स हैव डन। क्योंकि जब उनके बारे में आप उनकी किताबें पढ़ते हो आप, तो आपके जो दिमाग के जो विंडोज है ना, जो खिड़कियां है, दरवाजे है, वो खुलती है, राइट? So you will be able to understand therefore what you need to do to build your career and create your success for the organization, right? तो दोस्त, मिस्टर चंद्रशेखरन नाम सुना है? एन चंद्रशेखरन, किसने नाम सुना है? एन चंद्रशेखर। हाँ जी, कौन बताएगा? बस सिट्टी बिट्टी गुल, हवा गुल। एन चंद्रशेखर मे बी सर ये सीईओ है क्या? मे बी ये किसी कंपनी के, मे बी किसी कंपनी के सीईओ है। मैंने इनका नाम सुना है बट मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से वाले। आपने उनके साथ कभी कंचे खेले थे? गुल्ली डंडा, कंचे? नहीं नहीं, तो फिर क्या सुना आपने? सर दोस्तों, यही चीज है। तो ठीक है, एक और सवाल, टाटा ग्रुप का चेयरमैन कौन है? टाटा ग्रुप का चेयरमैन कौन है? तृप्ति वर्मा? ये एन चंद्रशेखर ही थे शायद, टाटा टाटा ग्रुप के ही। अच्छा, हाँ एकदम, एन चंद्रशेखर ही है। वेरी गुड। तो सीईओ नहीं है, या वो चेयरमैन। एन चंद्रशेखर सीईओ था टीसीएस का, and then he became a chairman of Tata Group, Tata Sons, Tata Group नहीं, Tata Son, right? क्योंकि रतन टाटा is no longer the chairman, he is chairman emeritus, right? तो दोस्त, कुछ बेसिक जनरल नॉलेज कि देश में क्या हो रहा है, कौन से कंपनी में क्या हो रहा है, राइट? कौन सी कंपनी किस चीजों में है, ओके, दुनिया में क्या चल रहा है। और कई लोगों ने अच्छे किताब लिखा हुआ है जिससे हम जैसे लोग, आप जैसे बच्चे कई चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि वो कर चुके हैं, वो उन्होंने अपना तजुर्बा लिखा है ना? सो तजुर्बा पाने का दो सीधा सीधा रास्ते हैं। एक तो कि आप यू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस व्हिच विल टेक टाइम। सेकंड थिंग इज यू लर्न फ्रॉम समबडीज मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स, है ना? सो दोस्त, ये है, एंड दैट इज व्हाई कॉम्पिटेंसीज which is again knowledge, skills and attitude का आज के तारीख में खास अहमियत है। क्योंकि जब तक मुझ में वो कॉम्पिटेंसीज नहीं है, मैं अपने आप को या अपने बिहेवियर्स को जो मुझे
सक्सेस पर्सनालिटी की तरह दिखाएगा, मैं उनको दर्शा नहीं पाऊंगा। ठीक है। सो any questions here? Anybody has any questions? You can start asking me questions if you have. Anybody? Yes sir, I have a question. Yeah, Ishwar. जैसे सर आपने बोला कि कोई भी जैसे फ्यूचर में चेंज आने वाले होते तो आप कोशिश करें और अपना बिजनेस उसके अराउंड बनाएं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि पेटीएम और इन सब लोगों, ये फर्स्ट मूवर इन्होंने इंडिया में चालू करा, अपना स्कैन कराना, कोड्स वगैरह सबको लोगों को सिखाया। लेकिन इसके बाद जो सेकंड मूवर कह सकते हैं, थर्ड मूवर कह सकते हैं, भारत पे जो आया, उसने अपने क्यूआर कोड के सॉल्यूशन से ऐसी कंपनी क्रिएट कर ली है जिससे कि वो मतलब पेटीएम को एक तरह से काउंटर कर दिया उन लोगों ने। सारा काम पेटीएम ने करा, इकोनॉमी को सिखाया, इंडिया को सिखाया कि स्कैन कैसे करते हैं, बाहर कैसे चीजें चलती हैं। जैसे ही सब इंडिया सीखने लग गया, सब लोग चालू हो गए, इसकी आदत पड़ गई। उसके बाद भारत पे ऐसा सोल्यूशन लेके आया और पेटीएम ने जितना इन्वेस्टमेंट करा होगा फर्स्ट मूवर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, भारत पे का उतना नहीं लगा, उसने एक काउंटर करा। तो ये हम भी जब अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो क्या फर्स्ट मूवर की तरफ देखें या फिर कोई ऐसे बिजनेस को देखें जो कि नया है और बड़ा भी है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया अगर आपने, तो आपका काम बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता ईश्वर। अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उस प्रॉब्लम का दूसरा तोड़ भी निकल के आएगा, है ना। आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, मान लीजिए, जिसकी दुनिया में पहले कोई वजूद ही नहीं था, पर अभी आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया धमाकेदार, ठीक है। आपके वो प्रोडक्ट बनाने के मात्र 2 महीने के बाद कई सारे कंपनियां आ जाएंगी जो उसी प्रोडक्ट को लेकर उसका बेटर वर्जन बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है बेटे, कि मेरा काम, अगर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, मेरा काम है कि मैं ऑनगोइंग डेवलपमेंट कैसे करता रहूं। अगर मैं ये सोच के कि मैंने बना लिया और मैं पहुंच गया, मैं जिंदगी में बस 6 महीने नहीं लगेंगे, आप पीछे आ जाओगे। सो लीडरशिप इज अबाउट ऑलवेज मूविंग अहेड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट नेक्स्ट, what more, what better, right? So it's all about thinking. That is why तभी मैंने बोला ना कि लीडर वही होता है जो मैक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट की समझ रखता है, राइट? और उस चीज को दिमाग में रखते हुए he keeps on aligning the resources towards the organizational goal, right? ये देखो ना, एप्पल का एग्जांपल देखो। अगर एप्पल पहला फोन लेके बैठ जाती कि बॉस मैं तो पहुंच गया ना, एप्पल क्या करती रहती है, आईफोन 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब 9, 11 लॉन्च करती है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन आईफोन 13। R&D चलता है हमेशा उनका। हाँ जी, समझ रहे हो आप ना। तो वही है काम ऑर्गेनाइजेशन का और लीडर्स का कि व्हाट नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो वो है। ओके, एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, थैंक यू सर। प्राची, सक्षम, जिवेश, प्रिया, मोहिनी, प्रशांत, ताशु, Aman, any questions that you have in mind? No sir. Okay. Okay, so Himani? Yes, sir. Yeah, so any questions that people have here? They don't seem to have any questions. So Ishwar was the only person who had some questions and Kundan had some questions. So anybody else? सर कैन आई आस्क वन मोर? Yeah, please. सर मेरा एक जैसे ये भी रहता है कि जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, उनका इतना कोऑर्डिनेशंस कह लीजिए या आप कह सकते हैं, उनमें घर में भी या उनका जो एनवायरनमेंट होता है इतने अच्छे लोगों के या लीडरशिप के साथ नहीं होता है। तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करें? जैसे आप बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन अगर जो मैं अपना एनवायरनमेंट देखूं यहाँ पे या मेरे आसपास के जो जितने भी लोग हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, XYZ चीजें, मुझे उस लीडर की साथ मतलब एनवायरनमेंट चाहिए या फिर उसकी जो नॉलेज है वो मिल जाए। ये सारी चीजें मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? ईश्वर, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूँ, बट न्यू दिल्ली में रहता न्यू दिल्ली में रहते हो ना? हूँ। ईश्वर, मैं मिर्जापुर में बड़ा हूँ, नाम सुने हो? हाँ जी सर। है ना? तो जानते हैं ना मिर्जापुर किस चीज के लिए फेमस है? हाँ जी सर। क्या?
सर इलीगल गोलियां, कट्टे, कट्टे। है ना, फुलन देवी वहां की थी। हाँ जी। तो वहां पे सिर्फ मार काट यही होता रहता था, और हमने जिंदगी भर वही देखा है गांव में। ठीक है, मैं भी वहीं से बड़ा होके निकल के गुजरात जाके, बॉम्बे जाके, साउथ जाके, हर जगह ठोकरे खा के फिर यहाँ पहुंचा हूँ, दिल्ली। आप तो राजस्थान से दिल्ली सीधा आए हो, मुझे दिल्ली पहुंचने में भी समय लगा है बेटे। एन चंद्रशेखर, अब्दुल कलाम आजाद, ये कोई भी गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए थे। ये लोग भी ठोकर खा के, इधर उधर से सीख के, राइट, कोशिश करके फिर बड़े हुए। याद रखिएगा, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास सब कुछ होता है और वो बहुत बढ़िया लीडर बनते हैं। नहीं बनते, क्योंकि उनके पास फिर सीखने की इच्छा चली जाती है, कुछ बनने की इच्छा चली जाती है। उनको पता है बाप दादा का पैसा है। इसलिए आप देखोगे कि मोदी जो थे गाजियाबाद में, खत्म हो गए ना। बाप दादा ने बनाया था, बच्चों ने कुछ किया, ग्रैंड चिल्ड्रन ने कुछ किया, खत्म। कोई काम नहीं करना चाहता अभी। और समझ रहे हो आप? रिलायंस का भी ऐसे ही होगा धीरे धीरे, अगर वो बच्चे उस हिसाब से, जिस हिसाब से मुकेश अंबानी चला रहा है, उस हिसाब से नहीं चला पाएंगे तो, नहीं तो फिर टूट जाएगा, आपस में भाग दौड़ हो जाएगा। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, नॉट ओनली ऑन किस्मत, इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस कंपनी में काम करना चाहते हो, और किस काम को आप छोटा समझते हो, बड़ा समझते हो। क्योंकि कुछ लोग ये समझ के काम नहीं करते। भैया मैंने बर्तन भी धोए होटल में अपनी पढ़ाई चालू रखने के लिए, पर कुछ लोग आज के तारीख में बोलेंगे आप पागल है ना। तो डिपेंड करता है कि आपको वो सक्सेस कितना चाहिए और उसके लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो। Yes. Thank you, sir. Okay, so Himani, if there are no questions, maybe you would want to close the session. यस सर। सर एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। Yes, Himani. जैसे हमें अपनी एज अ लीडर आपके पास में ये पावर होती है और ये चीज होती है कि हाँ हम अपनी बातें रख सकते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी चीज भी आती है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी चीजों को शेयर करना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस, XYZ रीजंस, हम उन्हें शेयर नहीं कर पाते, चाहे अपने सीनियर्स के साथ। तो ऐसे क्या चीजें और किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को, कि हमारे अंदर तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बट हम कभी उन्हें शेयर नहीं कर पाते। तो उस चीज को हमें किस तरीके से सामने प्रेजेंट करना चाहिए, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर समवन एल्स एज वेल, एंड इट्स गोइंग टू बी मोटिवेटेड फॉर अस एज वेल। So Himani, it totally depends on the situation and the organization culture. अगर सिचुएशन में आप में कमी, कि आप, जब मैं बोलूं कि आप में कमी है, मैं बोल रहा हूँ कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट, तो फिर आपको अपने आप के कॉन्फिडेंस पर काम करना चाहिए कि मैं सबके सामने बोल सकूं। कईयों में होता है कि जब सरेआम सब लीडर्स सीनियर्स को देखते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, बोल नहीं सकते। तो फिर मैं अपने आप पर काम करूंगा। पर अगर आपको लगता है कि यार मैं अगर यहाँ पे बोलूंगा कुछ, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो वो फिर एनवायरनमेंट की कमी है। तो वहां पे आपको अलग तरीके से पेश आना पड़ेगा। आप शायद उस मीटिंग में सबके सामने ना बोल के, तो शायद आप अलग से जाके आप अपना आइडिया देना चाहेंगे, राइट। कुछ जगह में ये होता है कि ईश्वर अगर मेरा बॉस है या आप मेरे बॉस हो, मुझे पता है कि आप मेरे आइडिया को नजरअंदाज कर दोगे, तो मैं जाके शायद ये बोलना चाहूंगा कि हिमानी मैम, आप ये जो अगर करेंगे तो मैम आपके लिए अच्छा होगा, राइट। लोग आपकी सक्सेस की तरफ नजर बिठाए रखेंगे कि आप कितने अच्छी तरीके से ये सिचुएशन को आपने हैंडल किया है। तो मैं कोशिश करूंगा ये दिखाना कि आइडिया उनका है, भले ही मेरा आइडिया है, और भले ही कि वो हिमानी जी मेरा आइडिया को अपना आइडिया बना के चले, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे लिए ये सीख होगी कि मेरा आइडिया और मेरा कॉन्फिडेंस अपनी जगह सही है, वो मेरा कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है कि हो सकता है कि मेरा बॉस हिमानी जी शायद
मेरे साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उनसे खुल के बात नहीं कर पाऊंगा। पर हो सकता है कि ईश्वर जी जो हिमानी के बॉस है, उनके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप है, वो अलग किस्म के इंसान है, मैं जाके वहां बात करूंगा, राइट? सो इट डिपेंड्स। अगर मुझे लगता है कि आइडिया में सही में दम है तो मैं कोशिश करूंगा। अगर मुझे लगता है कि आइडिया में या मेरे बात में या मेरे सोच में उतना वो दम नहीं है, तो शायद मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में या आइडिया को और बेहतरीन करने में मुझे कुछ और सोच लगाना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा। Yes, sir. Okay. So anybody has any other questions? So Himani, thank you so much for the time. I really enjoyed engaging in this session. Although 99% of the participants did not engage, but I hope they were listening and they were not sleeping. So I leave it to you and to Shekhar to decide whether it has been useful or not. So thanks a ton, Himani. Thank you Thank so you. much, sir. Thank you so much, sir, for your precious time, and Thank you. us all benefited from your virginal insight, and I'm sure your session will help everyone to improve their skills and to execute and to use in their working environment, in working culture, and even in their education life as well. I hope so. Thank you so much, and take care, stay safe. All the best to all of you. Thank you, everyone. Bye. Take care. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you, sir. Thanks. Bye.